ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਜੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਮਾਗਮ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਦਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਬਾਰੇ ਛੱਡੇ ਜਾਣਗੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਸਮ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਗੁਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। गुब्बारे हवा नाल तेजी नाल ऊपर उड़ते हुए सारे ग्राउंड के आसपास भी असी गुब्बारे देख रहे हैं। सीएम साहब नूं बेनती करांगे कि कौम के नाम अपना संदेश दें। आज अपनी 74वीं आज़ादी के दिहाड़े से परेड से अफसर और जवान साहिबान और ऐसे बाकी विराजमान मेरे वीरों से भैनों, आज जैसे थोनों पता है जिस तरीके का हाल साडे देश और साडे सूबे च बनया होया है, मारा मारी करके ये जिहड़ा आम तौर पर खुशियां मनाई जांदियां सीआं और लोग स्टेडियम भरे होंदे से वो असी ऐतकी ये कारण असी इनू थोड़ा रोकया हुआ है, क्योंकि असी नहीं चाहते कि होर ये बढ़े। लेकिन अज का जिहड़ा दिहाड़ा है ये साडे आज़ादी का साडे इतिहास का एक हिस्सा बन गया। 74 दिन हो गए, अगले साल आप एक बड़ा दिन मनावांगे 75वां, जदों इस देश के लोगों ने एक संघर्ष करके लड़ के अपनी आज़ादी खोई सी अंग्रेज़ों तो, और उस आज़ादी के दौरान बहुत सारे लोग उन्होंने शहादत पाइया। तुसी अगर इतिहास पढ़ो या कदे जाओ जैसे एंडमन्स दे विच उत्थे एक मेमोरीयल है सैल्यूलर जेल दे विच, जिहदे विच उन्हां पंजाबियों के नाम ने जिन्होंने काले पानी की सज़ा हुई सी और फिर कदे मुड़ के नहीं आए। उत्थे जब पूरे हो जाते से अंग्रेज उन्होंने समुद्र सिट दिंदे सी।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਕਈ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਪਛਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਗਏ। ਇਹੀ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੋਰ ਵਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਗੈਤੋ ਦਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਈ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਔਰ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਚਾਹੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜਾਂ ਨੇਵੀ ਦੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਹ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਲਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਈ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਲੜੇ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਔਰ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। 1947 ਸੀ, 1962 ਸੀ, 1965 ਸੀ, 1971 ਸੀ, ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ 1999। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲੋਕ ਬੜੇ ਘੱਟ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕੀਏ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਸ ਨੇ, ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਨੇ, ਜੋ ਇੱਕ ਮਾਰਾਮਾਰੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਸ, ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰਸ, ਸਾਡੇ ਰੈਵਨਿਊ ਸਟਾਫ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜੂ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ 2 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਲੜਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਕਹੇ, ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ, ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਰੈਵਨਿਊ ਸਟਾਫ। ਔਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਾਣ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ NGOs ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਪੁੱਛੇ, ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਦੱਸੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਲੈ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਬਗੈਰ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਪਏ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਰਿਆਨੇ ਦੇ ਸਟੋਰ ਬੰਦ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖੇ ਸੇ ਲੋਕ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਹ NGO ਸੇ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾ ਕੇ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਔਖੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਫਸਲ ਕੱਢੀ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ 26,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਸਾਡੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਨ ਖਵਾਇਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੰਨ ਖਵਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਸੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਔਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਬਗੈਰ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ।
और अखीर पंजाब के लोग पंजाबी आम तौर पे दलेर होंगे और वो आम तौर पे कदे कुछ पुछते नहीं, जो जो वो समझते हैं ठीक है वही करते हैं। कदे कदे गल चंगी होंगी है, कदे माड़ी होंगी है। जिहड़ी चंगी है कि मारा मारी का कोई डर नहीं किसी को। जिहड़ी माड़ी गल है वो इस करके कि ये जानते हुए कि बीमारी लग सकती है उन्होंने, वो फिर जो असी कहने हैं मास्क पाओ, हथ धो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, इस गल तो भुल जाते। ये लड़ाई कुछ होर किस्म की है, ये कोई सरहदी जंग नहीं, ये कोई इत्थे गैंगस्टरिज्म को तोड़न का जंग नहीं। ये किसी को पता ही नहीं कि की बीमारी है, सारी दुनिया लगी है इस वेले। हिंदुस्तान भरिया पिया, साडा अपना सूबा भरिया पिया, लेकिन साडी हिम्मत नाल पंजाब अज सारिਆਂ नालों एक सूबा है जिहदे च कुछ कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन अगर इसनूं आपां ने सिरे चढ़ाउणी है गल नूं, ताकि जदों पीक आके फिर थल्ले नूं चले जाए काम, फिर आपां नूं अपनी ड्यूटी निभाउणी पऊ पंजाब वास्ते, अपने गुआढ़ियां वास्ते, अपने तुहाडे परिवारां वास्ते, कि तुसीं जो असी दसते हैं, मैं नहीं दसदा, साडे डॉक्टर नहीं दसदा, ये माहर दसते हैं दुनिया के कि मास्क पाओ। अगर मास्क पाओगे 75-80% थोड़े बचाव हो सकते। अगर तुसीं हथ धोओगे, की औखा है कि 2 या 4 बार तुसीं हथ धो लो, की औखा है कि तुसीं अपनी सोशल डिस्टेंसिंग रखो, आ सड़कों के उपर ना थुको। किसी को मारा मारी की बीमारी है, और सड़क से थुक जाती है, किसी के पैरों में लग जाती है, और वो जाके अपने घरों के ਉਹਦਾ बच्चे भी खराब बीमार हो जाते हैं, वो घर वाले भी सारे बीमार हो जाते हैं। क्या फायदा है? ताई मैं कह रहा कि दलेरी भी अपनी जगह, लेकिन ये सोच समझ के चलनी पऊ इस बीमारी का सामना करने की। मैं इन्हों का भी अपने जोड़े साडे नौजवान ने, मैं जानता स्कूल बंद पे ने और उन्होंने पढ़ाई तो रह गए, लेकिन मैं उन्हों भी शुक्रगुजार है और उन्होंने पढ़ाने वाले का, जिन्होंने ऑनलाइन स्टडी शुरू करके उस विद्या के खेत्र के अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ताकि अगे वास्ते वो तैयारी करें अंतिम इम्तिहानों की। और इंडस्ट्रीयलिस्ट देखो, खेती बाड़ी का एक जगह होंगी है और इंडस्ट्रीयल प्रोडक्शन एक जगह होंगी है। अगर आपने आर्थिकता साड़ी मजबूत करनी है तो सानू अपनी इंडस्ट्री को चलाना पਊ, और उस चलाने में मैं धन्यवादी हाँ उन्हों का कि ये बावजूद कि जदों लॉकडाउन हुई सी सारिया फैक्ट्रियां पंजाब दियां बंद हो गई सी, लेकिन जिस दिन खोली 10 दिन वो फैक्ट्रियां चालू हो गई सी और बंदे आ गए थे उन्होंने काम करने लगे। ये है हिम्मत, और मैं उन्होंने शुक्रगुजार है कि पंजाब के लिए उन्होंने ये कदम चुकया है। कई ने फैक्ट्रियां भी चलाइया, लेकिन क्योंकि जिन्नी जाना चाहिए सी उन्होंने ऊपर उन्होंने प्रोडक्शन वो नहीं हुई, लेकिन वो बावजूद चलाते रहे, घाटा भी खाते रहे पर चलाते रहे, ताकि आर्थिकता साड़ी मजबूत हो। और इंडस्ट्रियल लेबर, कई लोग शुरू घबरा गए थे, सारे घबरा गए थे, वो कले नहीं कि की बीमारी आई है, किसी दुनिया पता नहीं। अमरीका देख लो, लखा बंदे बीमार, लखा बंदे की मौत। यूरोप देख लो, यूके देख लो, जेड़ा मुल्क कैनेडा देख लो, अही हम हाल होते चल रहे। तो एक घबराहट आ गई सी और कई लोग चाहते थे कि इतों चले जाए, उन्होंने असी भेजन वास्ते, क्योंकि वो साढ़े काम इतने करते रहे कई सालों तो 400 ट्रेनां सी कीतियां, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, यूपी वगैरह तक जो जानते हैं उत्थे असीं उन्होंने भेजिए। लेकिन उन्होंने भी वो देख लो, जब देख रहे हैं कि हालात सुन रहे हैं, सारे मुड़ के पंजाब आ रहे हैं, क्योंकि पंजाब वो रहे हैं, वो जानते हैं, वो जानते हैं साड़ी इंडस्ट्री को और साढ़े पंजाब को और पंजाबी और पंजाब आके खुश। तो ये अज मैनू ये खुशी है कि वो लोग साढ़े को वापस आना, लेकिन आपां नूं ये याद रखनी कोई सारी गल मैं पहला जिक्र कर चुके कि दुश्मनी सिर्फ ये नहीं, दुश्मन साडा ये महामारी, दुश्मन साडे बॉर्डर पर भी है।
पाकिस्तान दे विच है, जिथे रोज़ गोलियां चलदियां ने। जिस मैं पहला कहा सी कई लोग शहीद होंगे ने। सारा बॉर्डर उत्थे पाकिस्तान के नाल गल चलती है। कि उन्होंने दिमाग से पता नहीं, लेकिन जिन्नी वो करते हैं असीं भी उन्ना ही करने। अगर एक गोली वो चलाते हैं साढ़े भी 5 चलाने। आही तरीका है इन्हों समझाने का। और यही है चीनिया देखते हैं तुसीं किस किस्म के लोग ने। एक पासे हिंदी चीनी भाई भाई के नारे, दोस्ती पाउण के नारे, और दूजे पासे जदों साडे कोई जवान अफसर गए उन सरहद को देखने लई अपने डंडे कढ़ लए, जिन्हां दे विच सीखा वगैरह पाइया हुई सी, और साडे बंदियां नूं उन्होंने मारिया। साडे शहीद हुए 20 बंदे। लेकिन बहादुरी ये भी देखो, एक गुरतेज सिंह सी साडा थर्ड पंजाब का, जो मानसा के कोल उहदा पिंड है। उस कल्ले मुंडे ने उन्होंने घातक प्लटून का एक सी थर्ड पंजाब का, उन्हें कल्ले ने जाके 12 उन्होंने चीनिया बगैर कोई हथियार शहीद किया। फिर जो 13वें जा रहा सी, पिछों एक चीनी ने आके उन्हें पिठ के छुरा घोंपिया। इस किस्म के कायर ने लोग। तो आपां नूं तैयारी करनी पऊ उस वास्ते भी। पंजाब साडा एक सरहदी सूबा है, पाकिस्तान के नाल लगदा है, और चीन साथों दूर नहीं है। सानूं तैयारी रखनी पऊ अपने कि जदों देश साडी लोड़ है तो पंजाबी उसी तरीके नाल जैसे करते आए ने मुद्दता तो वो अपने देश वास्ते तैयार होकर सीना तान के सामने आउण। एक साडी आर्थिकता हाले जैसे मैं जिक्र किया तुहानूं कमजोरी या है, एक कोविड करके साढ़े जिन्नी पैसे सानू आने चाहिए थे, साड़ी रेवन्यू आनी चाहिए थी, वो पिछले 1-3 महीनों के 50% साड़ी डाउन। साढ़े ऐसे क्योंकि जैसे मैंने दसिया थोड़ा साढ़े पूरी स्पीड से साड़ी इकॉनमी नहीं चलने लगी, लेकिन असी कोशिश कर रहे हैं। और असी कल भी समा जोड़े माहर ने अपने हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी जोड़े बाहर ने उन्होंने गल की कि इस चीज़ में असी कैसे अगे लैके चलीए कि पंजाब की आर्थिकता मजबूत हो। पर कदे भी आप पिछे नहीं हटे। एक गल ये है कि जो हो गया सो हो गया, और साढ़े पिछे आप अगे ही चलते। असी ये थोड़िया गल्लां एक बार फिर मैं दोहराऊंगा कि 26,000 करोड़ का साडा कणक की खरीद हुई है। झोना भी अच्छा लग रहा, वाहिगुरू करे ठीक रहे, और किसानी ये होर मजबूत होए। ऑनलाइन एजुकेशन असी शुरू कर दी। स्मार्टफोन मैं वायदा किया पहला, और उन्हें शुरुआत करती कि जोड़े साडे बच्चे ने इस वेले 12वीं जमात के टैलीफोन लैन, जिन्हों ये नहीं कि दोस्ती नाल सिर्फ तुसीं टैलीफोन से गल्लां करन लग जाओ, लेकिन इसलिए दी है कि जी हुण ये ऑनलाइन पढ़ाई है वो टैलीफोन राही कर सकते हैं। और कई गरीब ने जिन्हों के कोल ये टैलीफोन नहीं खरीद सकते। बड़े बड़े मैं देख रहा कदे कदे अखबारों आ जाता है कि बड़े बड़े लोग ने बड़े बड़े टैलीफोन ने, बड़े महंगे टैलीफोन, लेकिन ये एक बहुत अच्छा टैलीफोन है, और जिस काम वास्ते दिता हुआ है वो पूरा हो सकता है। तो मैं खुशी है सुन के कि बच्चे बड़े खुश हुए हैं लेके, और वाहिगुरू करे कि चढ़ती कला अपने रहो, और थोड़ी जी विद्या के खेत्र में हो तपे हो, 12वीं करके कॉलेज जाओ, यूनिवर्सिटियाँ जाओ, ना बनाओ अपना, और ना ही साढ़े सूबे का। असी लोगों की मदद वास्ते जेडे कोई टैक्सेस सी फीस या किसी ने जो कर्जा दिता हुआ सी वो असी थोड़ा अगे कर दिता कि उन्होंने वापस किसी वे मोड़न की लोड़ नहीं, क्योंकि उन्होंने को है नहीं पैसे। तो दिन असी दे दिते, को टाइमिंग दे दी उन्होंने। तो लेकिन टाइमली जी पेंशन है, पेंशन और साड़ी कैश असिस्टेंस जी असी देने हैं वो असी समझ से रखी है, ताकि वो कि कोई महसूस ना इसमें करे। कुछ आने वाले दिनों कुछ असी कदम होर चुकन लगे हैं। एक तो पहली गल
50,000 ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 13.6 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 6 ਜੌਬ ਮੇਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਾਰਾਮਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਬਾਏ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜੋ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੁਧਾਰ ਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੌਬ ਮੇਲਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਸੇ ਵਰਕਰ ਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 4700 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4700 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਸੀਂ 5.62 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡੈਟ ਵੇਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 520 ਕਰੋੜ ਅਸੀਂ ਰੱਖੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵਸਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੈਂਡਲੈਸ ਫਾਰਮਰ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਇਹਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਔਰ 1 ਕਰੋੜ 48 ਲੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਸਟਾਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ 63,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ MOU ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਕੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ 63,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਲਦੀ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਨੰਬਰ 1 ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣਾ ਇਸ ਕੰਮ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਕਿ 1300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। 12,000 ਕਰੋੜ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। 28,830 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੂਰਲ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3,278 ਕਰੋੜ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। 6,162 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ 834 ਕਰੋੜ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 82 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ 750 ਰੂਰਲ ਸਪੋਰਟਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਦ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਜਿਮ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਮ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵਗੈਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਉਹ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਜਿਮ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਰੂਰਲ ਸਪੋਰਟਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 750 ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੀਮ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ, ਆਪਣੀ PNP ਦੀ ਟੀਮ, ਉਦੋਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਲੀਜ਼, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲੇਅਰ ਸਾਡੇ PAP ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਕਿ ਇਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ PAP ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ। स्मार्ट विलेज कैंपेन है,
सरकार का जो प्रोग्राम ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 19,132 रूरल वर्क्स असी कंप्लीट कर दिते हैं 835 करोड़ ला के तो जोड़ा फेज़ 2 है इसका स्मार्ट विलेज कैंपेन का 2500 करोड़ लगेगा अगले 2 साल बाकी पिंडों को स्मार्ट पिंड बनाने वास्ते टैलीविजन एजुकेशन का सिस्टम ऑनलाइन एजुकेशन स्कूलों के पा के सारिया ये हिस्सा है। एक और खुशी की गल है कि अगले 2 सालों के हर पिंड के पाइप पानी पाइपों के राही पीने का पानी 1200 करोड़ ला के असी अगले 2 साल पूरा कर देंगे। तो हर पिंड के साढ़े 12,300 पिंड के करीब ने पंजाब से हर पिंड के पीने का पानी पाइपों राही उत्थे पहुँचेगा। और दूसरा 1,046 करोड़ ला के अर्बन एनवायरनमेंट इंप्रूवमेंट प्रोग्राम अर्बन एरिया शहरों के इस कदम कर रहे हैं। जी सरबत सेहत बीमा योजना है साड़ी अभी बहुत लोगों को ये लियाए सारे तकरीबन रूरल के अर्बन हाउस होल्ड ये कवर्ड ने और वो का मतलब है कि जिन्हों ये बीमे के अधीन लै दिता गया है वो 5 लाख रुपया का किसी भी हॉस्पिटल जाके जो असी लिस्ट किए हुए हैं वो जाके अपने परिवारों को या आप जाके अपने इलाज करवा सकते हैं। माता तृप्ता महिला योजना ते माता कस्तूरबा महिला योजना जिहदे नाल सोशल इकनॉमिक भी असी ताकत दे रहे हैं औरतों को वो अज चल रहे हैं कि असी जो भी असी कर सकते हो और साड़ी औरतों को उन्होंने मजबूतीकरण मजबूत करने वास्ते उन्होंने भविख वास्ते असी ये कर रहे हैं। कोविड शुरू हो जाना चाहिए सी लेकिन ये बीमारी करके थोड़ा डिले हो गया। एक होर असी कानून नवा लिया रहे हैं न्यू लैंड लीजिंग लॉ ये लैंड ओनरशिप जो है साढ़े परिवारों की टेनेंट्स की जो उन्होंने जाके अपने लोग अपने जमीन को बहन लग जाते हैं जोड़े बंदे ने जिन्हों की वो जमीन है उन्होंने तो लैके उन्होंने फिर जो किराए पर लै लेंगे जमीन उन्होंने भी प्रोटैक्शन असी ये करा। ਹੁਣ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ज़्यादा ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਮਾਸਕ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ लोग सुन भी लेते हैं मेरी गल पर करते हैं। थोड़ा पता है 22 मार्च को लॉकडाउन शुरू होया और जोड़े बंदे नहीं मास्क पा रहे उन्होंने चलान किए गए और 22 मार्च को लैके हूँ सिर्फ कल के दिन 3000 कुछ चलान होए सी। उस तो पहला 4000 और 6000 के दरमियान सुनते नहीं लोग। ये उन्होंने जाना बचाने वास्ते असी गल्लां कीतियां ने कि सुनते ये सुनना जरूरी है और मैं बार बार इसको दोहरावांगे चाहे लोगों को पसंद हो ना हो मैं कहना ही रहना क्योंकि मैं चाहना कि ये लोगों ने मन च बस जे कि आपने थोनू बचाना है पंजाब को बचाना है थोड़े परिवारों थोड़े गुआढ़ियों थोड़े महल्लेदारों सारे पिंड वालों बचाओ और इस करके जरूरी है कि तुम करो और टेस्टिंग जरूर कराओ। पता नहीं घबराने क्यों ने लोग टेस्टिंग। मैं टेस्टिंग कराई सी कल DGP साहब ने भी कराई सी सारे ने कराई सी की औखी गल है पर लोग उस तो घबरा के भज जाते हैं। कुछ भी नहीं है टेस्टिंग पर कर लो और उसका कारण ये है कि जो सानू साडे मैडिकल वाले साडे डॉक्टर दसते हैं कि अगर पहले 72 घंटिया के तुहानू पता लग जाए कि मैनू पॉजिटिव निकलिया मैं
मैनू ये बीमारी हो गई, तब बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। असी की करते हैं, असी जो किसी को कोई जुकाम होंदा है या कोई दर्द होंदा है, कहते कोई गल नहीं, तो मौसम बदलती है, ठीक हो जाएगा सब। फिर 7वां दिन आ जाते, 8वां दिन, फिर तुम फेज़ 2 के आ जाते हो, फिर फेज़ 3 के आ जाते हो, फिर जाना बचने मुश्किल। तो ये याद रखो कि जदों भी तुहानू लगे कि मेरी सेहत अज ठीक नहीं, तो कल असी वो नहीं, ये ना देखो कैपिटल लेके आपको सीधे जाओ अपने डॉक्टर को, और उसके डॉक्टर तुम दसेंगे कि तुम्हें कोविड है और वो इलाज कर सकेंगे, ताकि आप जाना बचा। हूँ मैं तुहानू दस रहा कि 1000 तो उपर साढ़े थोड़े ही साथी, थोड़े साड़ी पुलिस, उन्होंने बंदियां ने कोविड होया, लेकिन सिर्फ 2 बंदियां सानू भी थोड़ा देख चले गए, बाकी सारे ठीक हो गए, क्योंकि टाइम सिर उन्होंने ट्रीटमेंट उन्होंने टेस्टिंग हुई सी और इलाज शुरू हो गया। यही आपने करना सारे कुछ। और होर की बड़ी गल है कि अगर तुम बड़े बड़े काठा चला जाओ ना जाओ, तो जब पेंसिल का नहीं काम, हथ धो लो, की औखी गल है नहीं, लेकिन ये जान थोड़ी भी और सारे नहीं बच सकती। तो ये मैं एक बार फिर बेनती करता सारे जो सुन रहे हैं और सुन रहे हैं, सारा मेरा घर पंजाब, आ सारे कैमरे सारे लगे हुए हैं सामने, तुसी मेरे आके लगो और अज ड्राइंग करके आप एक नवी शुरुआत करिए, जिन्हें आप पंजाब में आप बचा सकें। हुण कई लोग ने जिन्हों का जिक्र मैं पहला कर चुकिया, जिन्होंने महामारी अज लड़ाई रखी है। ये एक समय हाले चल रहा है काम और समय थोड़ा है, उन्होंने सारे 26 जनवरी को जब परेड होएगी और जब यह समागम होगा अपने गणतंत्र दिवस से, वो असी सारा के नाम लैके उन्होंने जो कुछ अभी देना पंजाब सरकार वालों अभी देवे। लेकिन 2 बंदे मैं थोड़ा अज जिक्र करना चाहता इतने मोहाली के डॉक्टर मनजीत सिंह जी सिविल सर्वेंट, सिविल सर्जन ने साढ़े मोहाली के डॉक्टर मनजीत सिंह जी, आप इन्हों की तबीयत खराब है, लेकिन वो बावजूद सवेरे तो शाम तक लगे रहते हैं इस महामारी के खिलाफ लड़े। और दूसरा डॉक्टर हरमनजीत कौर डिस्ट्रिक्ट एपिडेमोलॉजिस्ट ने, वो भी अपनी छोटी बच्ची थी उन्होंने अपने नानकिया को भेज के आप पूरी रह रहे हैं और सवेरे तो शाम तक वो भी लगे रहते हैं। उन्होंने दोनों का उन्होंने साथियों का मैं बहुत धन्यवादी हैं और वाहिगुरू करे थोड़ी लंबी उम्र हो डॉक्टर साहब, तुसीं ये बीमारियां तो तुसीं होरां भी रोक रहे हो, अपनी भी रोक लो, और ये असीं तुहानूं साडे पंजाब में थोड़ी बड़ी लोड़ है। अखीर डिस्ट्रिक्ट मोहाली दे विच अज इत्थों खड़ के मैं एक सब स्टेशन 66 किलोवाट का सैक्टर 82 IT सिटी उसका उद्घाटन कर रहे हैं। 3 करोड़ रुपया लगे, मेरी लोकेशन IT सिटी मोहाली है। और दूसरा कंस्ट्रक्ट जी टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर है, वो भी मोहाली नगर के मोहाली नॉलेज सिटी के 31 करोड़ रुपए का वो भी अपना शुरुआत चल रही है और वो बड़ी जल्दी चालू हो रही है। तो आज इस औखी कड़ी में एक याद कर रहे हैं आप वो दिहाड़े जब ये देश का आजाद होया, उन्होंने असीं श्रद्धांजलि भेंट करते हैं जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी। कई ना थोड़े ना मैनू उन्होंने ना पता, थोड़े पता है, कई ने नहीं पता, उन्होंने याद करो। और सानू सारिਆਂ ਨੂੰ देखो उदों औखी घड़ी सी यही जी कि अगर कोई बोलना सी अंग्रेज़ों के खिलाफ, फट उन्होंने पकड़ के या तो जेलों के या काला पानी की सज़ा या किते या गोली नाल मार देंगे। देखो जेलों कोई जैसे आप अपने पिंडा पोलिटिकल स्पीचा कर रहे थे, कोई कर रहा सी स्पीच होते और सारे लोग सुन आजाद पंजाब 25 गोलियां और 25 बलूचा नहीं 1650 गोलियां चला के पता नहीं कितने अज का ही नहीं पता
कोई कहते हैं 3,300 मरे ने, कोई कहना 1,000 मरे ने, कई जख्मी हो गए उत्थे, लेकिन अंग्रेज़ों तो डरते हुए वो उत्थे हस्पिटल नहीं गए, वो अपने पिंडा में चले गए और कई उत्थे शहीद हो गए अपने पिंडा जाके उत्थे जख्म ने। इन्हों याद करो जिन्होंने बगैर कुछ लिते बगैर कुछ पूछे अपने आज़ादी अपने देश को आज़ाद करने वास्ते एक गल करी थी। मैं एक बार एक चीज़ कहना चाहना रह गई कि असी जेडे साडे ये स्वतंत्रता संग्रामी ने इन्होंने हुण तीसरी पीढ़ी आ चुकी है, उन्होंने पोते ने जो असी फ्रीडम फाइटर का बेनीफिट देने उन्होंने दादा जी को, उन्होंने पिता जी को, उन्होंने भी असं देवे वो फैसला असी कर दिता कि उन्होंने भी असी जोड़ा थोड़े ही रह गए ने हूँ तक जो भी असी कर सकते हैं, क्योंकि उस परिवार ने साड़ी आज़ादी दिलाने वास्ते अपना संघर्ष लड़िया सी और अपनी शहादत दी। तो अज इस खुशी के मौके पर तो साडा आज़ादी का दिहाड़ा है, एक बार फिर सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत बहुत बधाई होए और वाहिगुरू करे साडा मुल्क और साडा पंजाब हर ਵੇਲੇ चढ़दी कला रहे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह, जय हिंद।